sir. Let me introduce, first of all, the subject experts. Professor Archana Verma ji from Bundelkhand University, जी Jhansi. सर। She is very much there. And अच्छा अच्छा एक मिनट। next expert is Professor Narendra Kumar Batra ji from Government Degree College, Pili-Bhit. अरे इनको So WhatsApp welcome कर you, दो। sir. एक लिंक If he is there, इनको Narendra किस Kumar नंबर पर? Batra ji, I think. वो करवा देता। Gunjan ji, if he is not there, please ask our principal sir to call him. And director nominee, Professor Anil Kumar Sonkar ji from Mahamaya Government Degree College is there with us. So welcome you, sir, Anil Sonkar ji. As our VC nominee, Professor Krishna Agrawal ji from Vashne College is very much there. I would request her to join. And we are waiting for Professor Rajesh Prakash ji, RHEO Agra. He would soon join the meeting. So, should we start now? And our principal sir, Dr. Pankaj Kumar Vashne ji is with us. सर नमस्कार। Yes, we can start. I think we can start. नमस्कार Yes. सर, आपका स्वागत सभी का। नमस्कार जी। Another expert, Narendra Kumar Batra ji. आ रहे हैं अभी उनको। हाँ हैं? Ask him to join because it is essential that the expert should be there. We would wait for 2 minutes. In the meanwhile, he is joining. एडमिट कर रहा है। बस यही थे ना बस फाइन। So, welcome Dr. M.K. Batra ji. He is from Government Degree College, Pili-Bhit. Namaskar. Namaskar, ma'am. Should we start, sir? Both the experts are there. Please, ma'am. Carry on. So, Dr. Gunjan ji has prepared a small PPT of 3 or 4 slides. She would show so that you may summarize, get the summary of her achievement during the assessment period. So, Gunjan ji, please present your PPT. Thank you, ma'am. Very good afternoon to all. Myself, Dr. Gunjan Agrawal. I am from Department of Commerce. As an associate professor, right now I am working over there. First of all, I welcome and thankful to our subject expert, Professor Archana ji, Professor Narendra Batra ji. Gunjan ji, your slides are not visible on the screen if you have shared. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will try it. Okay. Okay, now it's visible. It's very much visible. Now it is visible? Yes. Go ahead. Thank you, ma'am. I have joined as an assistant professor on 11th May 2010 in Vashne College, Aligarh. After that, I have been promoted for senior scale, AGP 7000 on 11th May 2014. After that, I have promoted for the selection grade AGP 8000 on 11th May 2017. And after that, there was a promotion for associate professor AGP 9000 on 11th May 2022. This is my research work, including research papers, books, conference, during the assessment period as well as full academic period also. My full academic period is from 11th May 2010 to 10th May 2025. But my assessment period is 11th May 2022 to 10th May 2025. My total research papers published during the academic period is 28, but in assessment period, I have published 15 research papers. Totally, I have published 4 books, but in assessment period, I have published
2 books. One is on the marketing management and HR. I have presented papers in national and international conferences throughout the academic period, that was 35. But in the assessment period, I have published 8 papers presented in national and international conferences. I have published total 8 book chapters in edited book, and during the assessment period, I have published 2 book chapters in edited book. I was the co-editor of 3 edited books during the full academic period, but in the assessment period, I was the co-editor of 1 edited book. Apart from this, I have supervised 3 candidates for the PhD, and that was submitted and awarded also. I got the national and international award also, and the international award for the best paper award conferred by International Journal Creative Research, and the national award was conferred by Institution of Social Reforms and Higher Education. So this was about my research area. Thank you, ma'am. So now I would request the experts, if they wish to ask, they can ask questions regarding the things that have been presented by Dr. Gunjan. So both the experts may ask the questions. So Gunjan, your academic is definitely very strong, and it has obviously gone through the IQAC. So we are not going to judge you on that, or I would not prefer asking anything related to academics. I would really be interested to know that since now अब आप professor बन जाओगे, तो आप administrative responsibilities आपके पास आएंगी, अच्छी responsibilities आएंगी once you become a principal. Once you become a professor. So my question is, अभी आप कितनी administrative positions hold कर रही हैं, अगर हैं आपके पास, तो प्लीज नाम बताइए उनका पहले. मैम, मैं राइट नाउ एडमिशन कोऑर्डिनेटर भी हूँ. इससे पहले मैं IQAC की भी मेंबर रही हूँ, और इसके अलावा मैं कॉलेज में प्रोक्टोरियल बोर्ड में भी हूँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की भी मेंबर हूँ यूनिवर्सिटी में, और तब इस तरीके की और मेंटरशिप भी है मेरे पास. कॉलेज में भी UGC सेल है, उसकी भी मैं मेंबर हूँ, वीमेन सेल है, उसकी भी मेंबर हूँ, और हमारे कॉलेज से मैगजीन्स निकलती हैं, तो जितने भी रिसर्च जी जी. हाँ, तो मैं मेरा क्वेश्चन स्ट्रेट कोऑर्डिनेटर आल्सो BBA. अच्छा, शी इज कोऑर्डिनेटर BBA प्रोग्राम आल्सो. दैट्स रियली नाइस, क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट की ही से रिलेटेड हूँ, तो वेरी कीन टू नो. तो BBA आपके यहाँ क्या चल रहा है, BBA ऑनर्स या BBA? नहीं, सिंपल BBA और BBA लॉजिस्टिक्स है. अच्छा, BBA लॉजिस्टिक्स है. हाँ, दो प्रोग्राम है. हाँ जी, सिंपल BBA और BBA लॉजिस्टिक्स भी है. हाँ, तो आप कोऑर्डिनेटर हैं उसकी? जी मैम. तो मुझे ये बताइए कि कितना एडमिशंस, आपकी सीट्स कितनी और एडमिशंस कितने हो जाते हैं? BBA में भी हमारी 60 सीट्स हैं, और BBA लॉजिस्टिक्स में भी 60 सीट्स हैं, और हमारे एडमिशन हमेशा फुल रहते हैं, कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहती. That's really nice. Now you tell me, how many times have you revised the syllabus of your BBA? Actually, this is on the university platform basically, but right now अभी हमने जैसे NEP आया, तब हमने चेंज किया था सिलेबस, और अभी रिसेंटली भी NEP के बाद भी मतलब NEP में 3 years या 4 years? नहीं, 3 years ही है मैम. 3 years है. हाँ, और अभी रिसेंटली भी चेंज किया हमने, उसको फिर से रिवाइज किया. पहले NEP में नहीं था, लेकिन अब ये फिर NEP में लाने की इसकी कोशिश की, तो अब उसको फिर से चेंज किया है. लेकिन अभी 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में अभी भी नहीं BBA आया है, अभी ये 3 years में ही चल रहा है BBA. हाँ, 4 year इंटीग्रेटेड क्या वो लास्ट ईयर में रिसर्च विद रिसर्च दे देते हैं ना. हाँ. जी, अभी वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए हम लोग यहाँ पे. अभी उसको अभी हमने सिंपल UG प्रोग्राम्स में उसको इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अभी BBA में नहीं कर पाए इस चीज को. तो अभी तो गुंजन जी, यू आर गोइंग टू बी वेरी सीनियर immediately after this interview.
So tell me your plans, या आपने क्या सोचा अपने कॉलेज के लिए कि आप क्या देंगी इस कॉलेज को becoming a professor? बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी आपकी, तो आप क्या करेंगी इस कॉलेज के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्या करेंगी आप? कुछ प्लान्स हैं आपके? डेफिनेटली मैम, स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा सबसे बेस्ट प्लान है वो है, जैसे हमारी जो स्कीम चल रही है कि आत्मनिर्भर भारत, तो मुझे सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपनी मेंटोरशिप में अभी भी दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं दे रही, अभी भी दे रही हूँ, कि आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग देम टू बिकम द एंटरप्रेन्योर, not only depending on the service or like these things. So this my aim कि we shall organize such type of the workshops and the development programs so that we can counsel the students and give the mentorship well in manner basically. And institution just a second, if you are talking about workshops and all or kind of programs, then they are not going to give the exact practical training to the students. Nowadays we are talking of Skill India and all these kind of things. Exactly. तो आपने कभी सोचा नहीं कि कहीं पे इनके कोई स्टार्टअप्स इनके रजिस्टर कराए जाएं कहीं पे? बिल्कुल मैम, हमने अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में है। हाँ, यस, अलीगढ़ इज स्मार्ट सिटी, तो वहाँ जरूर इंक्यूबेशन होगा, इंक्यूबेशन सेंटर होगा। हाँ तो जी, आपने तो स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए इंक्यूबेशन से ज्यादा अच्छा कोई जगह नहीं है। वहाँ आप प्रमोट करिए बच्चों को कि वो अपने छोटे लेवल पे, स्टूडेंट के लेवल पे स्टार्टअप बनाएं और वहाँ रजिस्टर कराएं, सो दैट इज गोइंग टू डेवलप मोर द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। एग्जैक्टली मैम, इंस्टेड ऑफ कि हम खाली थ्योरेटिकल नॉलेज दे दें, कोई आके लेक्चर दे जाए, उससे नहीं सीखता है कोई। नहीं, डेफिनेटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज वेरी मस्ट फॉर दिस थिंग। सो यू शुड प्लान लाइक दैट। मतलब अब आप प्रोफेसर हैं तो फिर आपका सोच वहाँ उस लेवल तक जानी चाहिए। नहीं मैम, और इसमें मेरा नेक्स्ट एक स्टेप ये भी है कि इंडस्ट्री से हम लोग कुछ MOU साइन करें, जिसमें जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हम थोड़ा सा लैकिंग पॉइंट है, तो हम इंडस्ट्री से भी जब थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करेंगे, कुछ MOUs करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स भी बेनिफिटेड होंगे और हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो चीज़ हम सोचते हैं उनको हम दे पाएंगे। तो ये भी मेरा एक प्लान है। आप यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी, आप क्योंकि BBA की कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप इंडस्ट्री से MOU तो करिए, साथ में अपना जो BOS है उसमें इंडस्ट्री के कोई रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करिए, जिससे आपको वो करंट जो भी सिलेबस रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, आप उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगी तो स्टूडेंट्स को बेटर वो मिलेगा ना। पर सब क्या होता है ना, ट्रेडिशनल कोर्सेज, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को आज के समय में दे आर फेसिंग कंपटीशन। दूसरे इंस्टीट्यूट कुछ और पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी होंगे वहाँ पर अच्छे खासे, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कम्पीट करना थोड़ा सा वो हो जाता है ना, है ना। तो आप अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स के लिए हो गया। कॉलेज के लिए क्या करेंगी आप? कॉलेज के लिए मैम जो हमारे स्टाफ हैं, कोलीग्स हैं, उनको मैं मोटिवेट करूंगी कि कैसे अपना रिसर्च एरिया स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे इस पोजीशन तक जो मैंने हर्डल्स या मैंने जो कुछ सीखा है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी हेल्प करना, दिस इज माय मेन पर्पस। ये तो एक थोड़ा सा आपका वो हो गया कि आप अपने कलीग्स के लिए सोच रही हैं ऐसा। मैं कॉलेज की बात कर रही हूँ। कॉलेज के लिए लाइक कोई उसको आप रिकग्निशन दिलवाने के लिए कहीं कोई जैसे NAAC A++ होता है या कुछ ऐसी ग्रेडिंग के लिए कोई एफर्ट करेंगी आप? भाई IQAC की आप मेंबर रही हैं। जी। तो आप बहुत अच्छे से समझती होंगी कि ग्रेडिंग्स हैं, जो ये रैंकिंग्स हैं, इतनी डिफरेंट रैंकिंग्स हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। कॉलेज के लिए कोई एफर्ट करेंगी आप? कुछ है? बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। और बताइए क्या करेंगी? जैसे मैम ये होता है कि अब हम लोग NAAC में ही हमें चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है कि सोसाइटी से हमारा कोलैबोरेशन किस तरीके का, या सोसाइटी को हम क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो कुछ चीजें, या हम ग्रांट्स है, मेन चीज होती है ग्रांट्स की, जैसे कि प्रोजेक्ट्स लेना है। अब प्रोजेक्ट्स हमें कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं मिलते, कई बार हम वहाँ पे करते हैं कि हम उस प्रोफेसर रैंक पे नहीं है, तो इसलिए हमें वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, या कहीं पे हम, तो अब मैं इस लेवल पे आ गई हूँ, तो डेफिनेटली हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, जिससे कि हमारे कॉलेज को भी बेनिफिट हो, वो हम प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करें। अब गुंजन जी, आपने अपना
हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट हाईएस्ट नहीं है, इसके ऊपर भी है, बट फिर भी, लेकिन अब आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि अब मुझे इस कॉलेज के लिए कुछ करना है, मुझे स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है, रीचिंग अ सीनियर लेवल, दिस शुड बी आवर थॉट्स ना. सो नाउ यू शुड हैव मोर अ फोकस ऑन दैट. आपके अचीवमेंट्स हैं, भगवान करे आप और आगे अच्छे से अचीव करें, बढ़िया वाइस चांसलर बने, प्रिंसिपल बने, खूब अच्छे से राइज करें, बट पहला अपनी कॉलेज, जिस कॉलेज ने हमको सब कुछ दिया, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, है ना. डेफिनेटली मैम. थैंक तो कुछ अभी मजा नहीं आया मुझे आपके प्लान्स में, आप थोड़ा सीरियस प्लान्स करिए, लाइक जो प्रैक्टिकल हो और एप्लीकेबल भी हो और आप उसको सच में कर पाए, यू नो, थोड़ा रियलिस्टिक भी होने चाहिए. जी जी. So try to have those kind of plans for your college. Yes. And do well. From my side, it's all the best. Thank you. Other experts, please. यस गुंजन मैम, एकेडमिक्स sir. आपका ठीक है, रिसर्च आपने 3 करा दी हैं, जी ऑनगोइंग कितनी है? नहीं सर, बस 3 ही थी, अभी 3 कंप्लीट हो गई. नया बैच अभी आएगा, अभी नया बैच ये लॉट नहीं हुआ सर. अभी नहीं हुआ. तो किन टॉपिक्स पे आपने वर्क कराया? सर एक तो स्टूडेंट का टॉपिक था एफडीआई इन रिटेल, और एक था कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी का कंपैरिजन किया था, और एक न्यू एज इंडियन बैंकिंग सिस्टम पीएनबी थी. अर्चना मैम ने 2-1 बातें आपको सजेस्ट करी, वो आपने समझ ली, मैं उन पे थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा. बीइंग अ लेडी टीचर, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है आज की डेट में मिशन शक्ति 5 के लिए. तो मिशन शक्ति के बारे में आपने कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया, जबकि हमें इसकी जरूरत थी आपसे कि अब आप प्रोफेसर बन जाएंगी, उन बच्चियों को जो बोल नहीं पा रहे हैं वो आपकी आवाज़ बनते हैं. और आज से प्रोफेसर बनने के बाद मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है हम प्रोफेसर हो जाते हैं तो हम क्लास को सेकेंडरी कर देते हैं, बट प्रायोरिटी गोज बीइंग अ टीचर ऑलवेज टू क्लास. तो क्लास नहीं छोड़ना है, नहीं बिल्कुल नहीं, चाहे हम प्रिंसिपल बन जाएं चाहे हम कुछ हो जाएं. और सेकंड थिंग जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमारे यहाँ, वो है इन बच्चियों की हिस्सेदारी. स्टार्टअप दीजिए, खूब दीजिए, लेकिन उन बच्चियों को भी जोड़िए जो कि हमारे यहाँ रूरल बैकग्राउंड से हैं. जी. और आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते प्रोफेसरशिप में. डॉक्टर सोनकर हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टर नॉमिनी हैं. नमस्कार सर. लेकिन शिक्षा निदेशालय जो हमारा है वो हमेशा इंटरटेन करता है यंगेस्ट टीचर्स के प्रपोजल जिनका एक्सपीरियंस सिर्फ 4 साल. तो आप प्रपोजल दीजिए, वी आर रेडी. आपका प्रपोजल थोड़ा सा भी उसमें कहीं स्पार्क होता है तो डायरेक्टरेट हमेशा तैयार रहता है, और डायरेक्टरेट के संग आप उत्तर प्रदेश शासन प्रतिबद्ध है ऐसे टीचरों के लिए. तो कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं है कि प्रोफेसर होंगे तभी आपको मिलेगा. मैंने तो अपने जॉब के 4-5 साल में ले लिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है. और आप ऐसी फील मत लाइए प्रोफेसर बनेंगे तभी प्रोजेक्ट मिलेगा. और ग्रांट्स बहुत सारी और भी अवेलेबल है, उन्हें सर्च आउट करिए. व्हेन वी बिकम टू प्रोफेसर तो थोड़ी सी हमारे अकाउंटेबिलिटीज बढ़ जाती है, जो अर्चना मैम कह रहे थे. जी. उन्होंने आपको बीबीए के सिलेबस रिवाइज करने को बार बार इसलिए बोला दैट सिलेबस मैच अप टू द प्रैक्टिकलिटी. हो ये रहा है कि हम एनईपी तो स्टार्ट कर चुके हैं, हमने स्किल डेवलपमेंट्स की भी उसमें अच्छी बातें करी हुई हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पा रही हैं. तो उसके लिए काम करना है हमको. जी. जो हमारी मंशा है हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की, उन मंशाओं पे उतारने के लिए हम ही लोग हैं. तो द वर्क शुड. बाकी आपका काम बढ़िया है और पंकज जी ने बहुत सतत प्रयास किए आपके लिए, और पंकज जी को बहुत बहुत बधाइयाँ. IQAC कोऑर्डिनेटर मैम को बधाइयाँ, और आरएचयू सर अभी हैं शायद नहीं है, और उन्होंने हम लोग. प्रणाम सर. तो आप आपका जो पूरा ये परिवार है ना सर, प्रणाम.
सर नमस्कार। तो ये पूरा जो आपका नमस्कार, महाविद्यालय नमस्कार। परिवार है, आप शायद पहचान पा रहे होंगे, आप झांसी से। नमस्कार मैडम। हाँ, नमस्कार। तो ये पूरा महाविद्यालय परिवार आपके लिए लगा हुआ है। बस ऐसी ही चाहत लेके हमारी पहली एक्सपर्ट ने बोला था आपको